till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Hello everyone, this is Saubhagya. Welcome to my channel Road to Success. This is part 6 of the video series of relations and functions. So in this video we will learn what are identity functions, what are constant functions, and what are linear functions. So from this video onwards I will be telling you some important functions and their graphs which are very commonly used in the questions that you will tackle in your board in your exams in class 11, and also they come in your board exams in class 12 when you will study calculus. So a lot to learn, so let's get started. So one of the important functions that we come across is identity function. So what is an identity function? So identity function is defined by y equals x equation for all x belongs to R, where R is the set of all real numbers. So we have learned that R represents the set of all real numbers when we studied set theory. So in this, so from the graph you can easily see that y equals x is just a very easy to draw functions. And one important point that you must understand is that this line cuts across the plane at a 45-degree angle, because each increase in y will be followed by a corresponding similar increase in x. See, for example, x equals to 1, then since from this equation we will get y equals to 1, so similar increase. Then x equals to 2, similarly y will also equal to 2 at this point. Then x equals to 3 will give us y equals to 3, and so on. And on the negative side also, when x equals to -1, it will give us y equals to -1. When x equals to -2, it will give us y equals to -2. So in this same way it goes on till infinity. So this is how identity function works. Whatever value you plug in as x, the same value you will get in y. So the domain, so it is very but obvious that the domain and range of this function will be R, that is the set of all real numbers. So domain और range में सारे real numbers होंगे, ठीक है, कोई भी बचेगा नहीं, ठीक है. So this is identity function. Constant function. A constant function is defined by y equals fx equals c, where c is the real number. So simple भाषा में ये क्या कह रहे हैं कि y equals c, और c कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है. जैसे एग्जांपल में मैं कह सकता हूँ कि y equals 3 या y equals 0 या y equals -3. तो उनको ग्राफ में कैसे दिखेंगे? y equals 3 ऐसे दिखेगा ग्राफ में, ग्राफ के ऊपर एक पैरेलल लाइन की तरह जो x एक्सिस के पैरेलल चल रही है. इसका मतलब क्या है? देखिए, x की चाहे कोई भी वैल्यू आए, चाहे नेगेटिव वैल्यू लूँ मैं तब भी मुझे 3 ही वैल्यू मिलेगी y में, चाहे मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँ तब भी मुझे 3 ही वैल्यू मिलेगी, चाहे 0 वैल्यू लूँ तो भी मुझे 3 ही मिलेगी. और अगर y इक्वल्स टू 0 है तो वो पूरा x एक्सिस पे ही आ जाएगा, जो हमारा ये लाइन है ये x एक्सिस पे ही आ जाएगा हमारा, ठीक है. सो अगर मैं नेगेटिव लूँ तो ये नीचे चले जाएगा, ठीक है, y डैश प्लेन में चला जाएगा, ठीक है. तो दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन. सो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स x, c, नेमली द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो इस फंक्शन में चाहे कोई भी आप कांस्टेंट की वैल्यू लो, चाहे आप y इक्वल्स टू 3 लो, चाहे y इक्वल्स टू 7 लो, चाहे y इक्वल्स टू -8 लो, आपका हमेशा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, हमेशा लाइन आपकी पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, ठीक है. और इसकी फिर आप समझ ही सकते हैं, इसकी रेंज में हमेशा जो भी आपने कांस्टेंट लिया वही आएगा. आपको हमेशा जब भी आप x की कोई भी वैल्यू प्लग इन करो आपको आएगी वही सेम y की वैल्यू, ठीक है. और डोमेन इसकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन. Now third and very important function is
linear function. So a linear function is a function defined by an equation of the form y equals ax plus b, where a and b are real numbers and a is not equal to 0. ये पॉइंट क्यों लिखा गया है, आप क्या बता सकते हैं मुझे कि a कैनॉट बी इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया, स्पेसिफाई किया? क्योंकि देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में a को 0 कर देता हूँ तो 0 इंटू एक्स, तो y भी 0, x भी 0 हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या, ये सब हट गया तो क्या बचा, y इक्वल्स टू b, तो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ये कौन सी इक्वेशन की फॉर्म थे, ये कौन सा फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन. इसीलिए a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा. लेकिन b 0 हो सकता है, b 0 होने के बावजूद भी हमारे पास एक डिफरेंट x की वैल्यू आएगी, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं बनेगा. ठीक है, दैट इज वाई इट इज रिटन कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे प्लॉट करते हैं. ठीक है, इसका एक अलग एंगल होता है, एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड थीटा. एंड देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने अभी नोटिस करी होगी कि ये जो इक्वेशन का हम जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये b पॉइंट हमें पहले दिया हुआ. दैट मीन्स कि b पॉइंट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. इस इक्वेशन में b पॉइंट हमें बताता है कि ये लाइन कब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, और इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अब देखिए इस पॉइंट पे क्या है, y b है, y की वैल्यू तो b है, लेकिन x क्या है, 0. तो जब x 0 हो जाएगा तो अपने आप ये y इक्वल्स टू b वैल्यू आ जाएगी, तो इसीलिए ये इंटरसेप्ट ऐसे है. ठीक है, so graph of this function is a set of all the points x and ax plus b, क्योंकि ax plus b की वैल्यू क्या है, ax plus b is equal to y. ठीक है, नेमली द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं. ये जो इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल्स ax प्लस b, इसको हम स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म भी कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, एंड ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप a एंड y इंटरसेप्ट b. तो हमें ये तो पता चल गया कि b इंटरसेप्ट होगा जहाँ पे y पे वो इंटरसेप्ट करेगा, और a को हम स्लोप कहते हैं. ये एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लंबा कंसेप्ट है जो आप ग्राफ्स और ज्योमेट्री में ज़्यादा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलस में पढ़ेंगे. तो ये इसको भी हम रहने देते हैं, आप बस समझ लीजिए a इज इक्वल टू स्लोप, बस ये समझ लीजिए. ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं. तो इस फंक्शन में हमारे डोमेन रेंज बोथ विल बी रियल नंबर्स, बट बोथ विल बी डिफरेंट. ठीक है, रियल नंबर कहने का मतलब ये नहीं है कि सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बनेंगे. ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव है तब भी y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ही आ रही है. ठीक है, सो इसके हमें डोमेन रेंज रियल नंबर के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे. ठीक है, so this was all about linear functions. So if you like this video, please hit the like button and share it with your friends, and if you haven't subscribed, please subscribe to my channel Road to Success. And in the next video I will be talking about two of very different and unique type of functions which you won't find anywhere else. So stay tuned, see you soon in the next video. Bye bye.